Hello, everyone. Welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class. And today's class is from Unit 5. And Unit 5 is Concept of Market. And the topic of today's class is Analyzing the Microenvironment of the Market. Dear students, there are two kinds of forces that operate in the market. One is microenvironment and another one is macroenvironment. Microenvironment are the forces which are very close to the organizations which they have to serve. Macro forces are the forces which are not close to the organization and their working impacts the organization. So in today's class, we are going to study about those forces which are very close to the organization and which it has to serve. So in today's class, we are going to take up following pointers: introduction, market dynamics, opportunities and threats, market environment, key institutions, microenvironment, internal forces, producer, seller, market drivers, customers, market influencers, competitors, market challenges, consumer demand, business impact, strategic advantage, staying competitive, suppliers, and marketing intermediaries. So in today's class, we are going to take these 11 points into discussion. Let's start with the first point. Introduction. Motorola, a few years back, dominated the industry. Earlier, it had almost 50% of the cell phone handset market, which now is merely 17%. Satyam once ranked fourth in the top Indian IT companies list in the year 2008, but collapsed in 2009. Today, even the most established Indian brands are facing their biggest challenge and are drawing up plans to protect their market base. बच्चों, आप किसी भी बड़ी कंपनी की बात कर लीजिए, यहाँ पर हमने मोटरोला की बात करी है। कभी एक वक्त हुआ करता था कि 50% मार्केट शेयर सेलफोन मार्केट का मोटोरोला के पास था, पर आज 17% और शायद उससे भी कम है. There was a time when an Indian software development company, सत्यम, जो इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज में कंसिडर की जाती थी, शुमार होती थी, बट टुडे इट इज नोवेयर. So what made them to reduce the size of their business this much? And these are the micro forces of market. If you are serving them well, they will help you to grow, and if you're not serving them well, they will help you to get diluted. Are you getting it? So it's very important to understand from this example that there were certain big companies, but कहीं पर उन्होंने मार्केट की डिमांड्स को या कस्टमर की डिमांड्स को या उनके ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह से पूरा नहीं किया जैसी रिक्वायरमेंट थी, एंड अल्टीमेटली दे हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल. सेकेंड पॉइंट, मार्केट डायनामिक्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. डायनामिक्स का मतलब है चेंजेस विच कीप्स हैपनिंग. वो ये नहीं है कि आज हो रहे और कल नहीं हो रहे. देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द मार्केट विच कीप्स हैपनिंग. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट अपग्रेडेशन. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट. फॉर एग्जांपल, नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द कस्टमर्स ऑल्टरिंग. सो ये चीज सब चीजें होती रहती है. ये आज नहीं, ये हमेशा होती रहेगी. आज भी हो रही है, कल भी होती थी और आने वाले कल में भी होती रहेगी. सो मार्केट डायनामिक्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. द मार्केट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, फिल्ड विद अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो आपने बच्चों मेरे साथ स्वॉट एनालिसिस पढ़ा ही है. अगर आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, तो आपको नजर आएंगी अपॉर्चुनिटीज.
और अगर आपके पास वीकनेसेस हैं तो आपको नजर आएंगे डर, थ्रेट्स। Businesses that ignore or resist these market forces often struggle. और जो businesses इन चीजों को इग्नोर करते हैं, businesses that ignore or resist these market forces often struggle. जिसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर स्ट्रेंथ्स, और अगर आप पीछे आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वीकनेसेस है। व्हाई वीकनेसेस इज देयर? बिकॉज यू आर टेकिंग थ्रेट्स वेरी वेरी लाइटली। व्हाई अपॉर्चुनिटीज आर देयर? बिकॉज यू आर टेकिंग स्ट्रेंथ्स वेरी वेरी कॉशियसली, कि भैया हमें काम करना है अपने ऊपर, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, जिससे हमें मिलेगा सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? Third point, successful companies like Google and Yahoo adapt quickly. जैसे ही चेंजेस आते हैं ये उस पर एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं, एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं। While others like American Airlines and Avon faces challenges due to unfavorable market conditions. ये सबके साथ है। मार्केट कंडीशन फेवरेबल रेयर टाइम पे होती है, but majority of the time it is the unfavorable, and that is what the art is. अब देखिए बच्चों, जो पहला पॉइंट है, सक्सेसफुल कंपनीज लाइक गूगल एंड याहू अडेप्ट क्विकली बट अदर्स कुड नॉट। मैं आपको अडेप्टेशन का एक एग्जांपल बताता हूँ। आई एम हैविंग अ प्रिंटर हियर, और वो प्रिंटर ने परसों परसों मैंने उससे स्कैन किया डॉक्यूमेंट, तो उसने ना कलर्स बहुत डिफरेंट दिखाया। जहां पे रेड कलर आना चाहिए था वहां पे येलो कलर आ रहा है। तो मैंने कहा इंक लेवल भी ठीक है, सब सही चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, वाइट इज नॉट वर्किंग। आई इंस्टेंटली कम इनटू एक्शन। मैं कहा नहीं नहीं, इस पर काम करना पड़ेगा, डिले हो गया ना। तो ये प्रॉब्लम आज छोटी है, देखिए ना, प्रॉब्लम छोटी होती है, इसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी बड़ी होगी, इसे आप और मतलब कर पाएंगे रिजॉल्व, और थोड़ी बड़ी हो जाए तो शायद तब भी आप कर पाएंगे। पर अगर फिर पूरा प्रिंटर ही आपका प्रॉब्लम बन जाएगा तो आप रिजॉल्व नहीं कर पाए, फिर आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। आई मूव्ड इनटू एक्शन। मैंने एकदम से एक्शन लिया, और आज आधा पौना घंटा अच्छे से उसकी हेड क्लीनिंग की, नोजल क्लीनिंग की, हेड अलाइनमेंट किया, जो सॉफ्टवेयर से हो जाता है। एंड आफ्टर 5-6 मिनट्स इट स्टार्टेड वर्किंग वेल। ये है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, या जो मैं जैसे पढ़ाता हूँ इन चीजों को, मैं बहुत ज्यादा डिले नहीं करता अगर प्रॉब्लम आती है। ये डायनामिकल चीज है, ये होती रहेंगी। ये ऐसा नहीं कि आज इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है तो कल नहीं आई, कल हो सकता है और भी आए। पर एक बार आप एक्शन लेने के आदी हो जाते हैं ना, तो दोबारा भी आप ऐसे एक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, मैं इसे क्लिप कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मार्केट इज कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन टू वेरियस कॉम्पोनेंट। मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, केयरलेस नहीं रहना पड़ेगा। वो कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप एक बार केयरलेस हो गए तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस while driving car, while living life, and while running your business. Are you getting it? I hope you have understood it. Market dynamics, opportunities and threats. Third thing, मार्केट एनवायरमेंट की इंस्टीट्यूशन। अब मार्केट की एनवायरमेंट क्या है, मौसम क्या है मार्केट? पहला पॉइंट, द मार्केट एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ की इंस्टीट्यूशंस दैट इंटरैक्ट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों, बहुत सारे, बहुत अच्छे, बहुत मेहनती, प्रॉपरली ओरिएंटेड, अलाइंड इंस्टीट्यूशंस मार्केट में काम कर रहे हैं, जो आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। और याद रखिएगा, गिविंग इज रिसीविंग। जो जितना अच्छा प्रोडक्ट, जितनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है, उसे आप खुद ही हक प्रोवाइड कर देते हैं उस बेनिफिट्स को रिसीव करने का।
तो ऐसे कुछ की इंस्टीट्यूशंस हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, जो आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड पॉइंट, these factors and forces impact a firm's ability to build and maintain customer relationship। और जो जितने अच्छे प्रोडक्ट्स, जितनी अच्छी सर्विसेज देगा, उतना उतना ही अच्छा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप फॉर्ज होगा या फॉस्टर होगा या प्रमोट। थर्ड पॉइंट, a market connects buyers and sellers, meeting their needs and wants through the forces of demand and supply। तो मार्केट में क्या होता है, बायर्स सेलर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बायर्स सेलर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। और इसको अंडरस्टैंड किस प्रकार से और किस बेसिस पे किया जाता है, इकोनॉमिक्स में कहा जाता है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा, डिमांड ज्यादा सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम सप्लाई कम। अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स इज क्रूशियल फॉर अ बिजनेस सक्सेस। बच्चों बिजनेस में अगर आप एक भी दिन, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपने ध्यान से इस एग्जांपल को सुनना है, बहुत जबरदस्त एग्जांपल। देखिए, बिजनेस में आपका ना जो रोज का काम है ना, इट इज वेरी कॉशियस लाइक अ स्टेयरकेस। आगे बढ़ने के लिए दिस इज डे 1, डे 3, डे 5 एंड सो। अब फॉर एग्जाम्पल आप इन दिनों पे, इन दिनों पे आप बिल्कुल बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या होगा, आपकी कुछ स्टेयर्स है ना इस प्रकार से दिखेंगी, विद गैप्स। फिर आपको आदत पड़ जाती है, कोई बात नहीं, एक दिन और सही, एक दिन और सही, एक दिन और सही। तो फिर आपकी स्टेयर्स है ना कुछ इस प्रकार से नजर आती है। एंड वन फाइन डे, इस ये ना जो इसे बीच के पार्ट होते हैं ना स्टेयर्स के, ये होते ही नहीं है, तो कंपनी खत्म हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। तो आपको ना कॉन्शियसली, ये आपका एक दिन भी हो सकता है ये स्ट्रक्चर, ये आपका एक महीना भी हो सकता है, ये आपका एक साल भी हो सकता है। हाउ सिंसियर यू आर टूवर्ड्स योर वर्क ओनली डिपेंड्स अपॉन योर फॉलोअप्स एंड ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। आप अगर हर मिनट अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं, तो मैं आपको एश्योर करता हूं, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, आप कभी फेल नहीं हो सकते। ये वर्ड ना हैबिट्स, ये हर जगह काम करता है। देयर आर सर्टेन पीपल दोज हु आर टू मच इनटू देयर बिजनेस, उन्हें सारा दिन अपने बिजनेस को ट्रैक करने की आदत होती है, लोगों से बात करने की आदत होती है, मीटिंग्स होल्ड करने की आदत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को रेगुलरली ट्रैक करते हैं, बहुत नपा तुला खाते हैं, बहुत नपी तुली बात करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, एंड दे बिकम सक्सेस। सो मार्केट एनवायरनमेंट की इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, बायर सेलर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई है, बट ऑन टॉप ऑफ इट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें अपने काम को रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव ऑन। छोटी सी प्रॉब्लम है, विद इन फ्यू आवर्स इट हैज टू बी रिजॉल्व। आगे चलते हैं। अब माइक्रो इन्वायरमेंट, इंटरनल फोर्सेस, ये जो फिगर है मैंने आपकी बुक में से लिया है। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई जस्ट मार्क इट अप फ्रंट की ये वीआईपी पॉइंट है, वीआईपी पॉइंट है। The microenvironment includes forces within or close to the organization that directly impacts its ability to serve customers। ऐसी फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये ऑर्गेनाइजेशन है साथ 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 लगी हुई है, जो उसे हेल्प करती है इन ऑर्डर टू सर्व द कस्टमर्स वेल। अब जैसे मार्केट इंटरमीडियरीज, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, प्रोड्यूसर, ये क्या हो गया, माइक्रो एनवायरमेंट। ऐसी एनवायरमेंट जो
कंपनी के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई। मैक्रो एनवायरनमेंट वो है जिसने बहुत सारी कंपनी को एक साथ पकड़ा हुआ। द एनवायरनमेंट विच इज बिगर, जिसके अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी कंपनीज आ जाती। बट माइक्रो एनवायरनमेंट इट इज रिलेटेड टू मार्केट इंटरमीडियरीज, तो मार्केट में काम करते हैं लोग, सप्लायर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको इनको सर्व करना पड़ता है। इनसे हेल्प लेनी पड़ती है, इनको काम देना पड़ता है, और तभी बिजनेस की साइकिल चलती है। आप एक भी व्यक्ति को इसमें से हैंडल नहीं करेंगे ना, तो बिजनेस विल कम टू अ हॉल्ट। के लोग कहते हैं ना, मैं अकेले ही सारा काम करूंगा, अकेले ही सारा बिजनेस करूंगा। एक्चुअली दे आर फॉरगेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। You need to keep everyone, aligned with the business. Everyone keeps serving the business. तो अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। This includes producers or sellers whose goals, objective, policy and strategies shape the market. इसमें होते हैं प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, जिनका गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, टू प्रोवाइड राइट एनवायरमेंट एंड शेप टू द मार्केट। ये है तो मार्केट है, ये है तो मार्केट नहीं। प्रोड्यूसर्स भी तभी प्रोड्यूस कर रहे हैं जब सप्लायर्स मार्केट में बैठे हो, जब सेलर्स मार्केट में बैठे हो। तो इट इज all connected, it is all synced, like this, and it creates a strong bond. Successful companies recognize and respond to unmet needs and trends. जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं वो रिकॉग्नाइज करती, पहचान, रिस्पॉन्ड, रिएक्ट नहीं करती, उन्हें अंडरस्टैंड करती है टू अनमेट नीड्स एंड ट्रेंड्स, क्रिएटिंग सॉल्यूशंस फॉर द मार्केट। और सक्सेसफुल कंपनीज क्या देखती हैं कि कोई चीज ऐसी है जो फुलफिल नहीं की जा सकी, उसमें ट्रेंड्स हैं, उसके लिए वो सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं एंड प्रोवाइड गुड प्रोडक्ट्स और गुड सर्विसेज टू द मार्केट। तो सब क्या है, इंटरनल फोर्स, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। और जो इसमें सक्सेसफुल है वो बहुत ध्यान रखता है ऐसी नीड्स का जो फुलफिल नहीं की गई, और फिर उन नीड्स को फुलफिल करते हैं। और जब वो बार बार फुलफिल करते हैं तो दे कम इनटू लाइमलाइट, पीपल स्टार्ट्स लाइकिंग देम, अप्रिशिएटिंग देम, एक्सेप्टिंग देम, एंड देन दे बिकम सक्सेसफुल। कोई बहुत बड़ा, आप ये कहें कि राज है बिजनेस चलाने में, यही राज है बिजनेस चलाने में, कि जो भी अनमेट नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने उन्हें अनदेखा नहीं करना। आपने ये नहीं करना कि मुझे नजर नहीं आ रहा है, आपको नजर आ रहा है तो उसको सॉल्व करिए, अच्छे से अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, एंड यू विल बिकम सक्सेस। सो माइक्रो एनवायरमेंट, इंटरनल फोर्स, प्रोड्यूसर, सेलर, ये कौन है, मार्केट ड्राइवर्स, जो आपकी मार्केट्स को ड्राइव करते हैं। प्रोड्यूसर्स प्ले अ वाइटल रोल in the market by staying aware of the market needs and trends. They identify opportunities and threats, catering to social responsibility. वो पहचानते हैं अपॉर्चुनिटीज, वो पहचानते हैं थ्रेट्स को, इससे सोसाइटी का भला हो। जो चीजें सोसाइटी में रिक्वायर्ड नहीं है वो उनको ही पहचानते हैं, जो रिक्वायर्ड है उनको ही पहचानते हैं। तो ऐसे वो क्या करते हैं, सोसाइटी को मैक्सिमम सर्व करते हैं। मोर प्रोड्यूसर्स मीन्स हेल्थियर कंपटीशन। जितने लोग प्रोड्यूस करेंगे उतना ही अच्छा प्रोडक्ट मार्केट के लिए तैयार होगा। आज आप देख लीजिए, ऑटोमोटिव के अंदर एक से एक बढ़िया कंपनी, एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट आपको मार्केट में दे रही है, बिकॉज एवरीवन इज प्रोड्यूसिंग, एवरीवन इज प्रोड्यूसिंग। Ethics, values, creativity and innovation of the seller set market trends. Very, very important. Do not underestimate, these values, ethics, सही गलत में समझ, वैल्यूज, इन चीजों को फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, दूसरे की लाइफ में इंप्लीमेंट करना।
ये नहीं सिर्फ नाम के लिए आपने एथिक्स रखे हुए हैं एंड यू आर नॉट सर्विंग एनीवन ऑन इट्स बेसिस। क्रिएटिविटी, अच्छे से अच्छा काम देना, काम को बेहतर बनाना, उस पर रिसर्च करना, उस पर पढ़ाई करना, इनोवेशन, न्यू थिंग्स ऑफ द सेलर सेट मार्केट ट्रेंड्स। और जब एक व्यक्ति ये सब करता है ना, इट स्प्रेड्स लाइक एन एलगी। सब लोग इस पर काम करते हैं, सब लोग इसको महत्व देते हैं, और फिर जब सब लोग करते हैं तो मार्केट में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो जाता है। जब हर व्यक्ति को मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो लोगों का जो सबसे बड़ी चीज ग्रो होती है वो होती है ट्रस्ट, ट्रस्ट फैक्टर। और बच्चों याद रखिएगा, जब ट्रस्ट बनता है ना तो ट्रस्ट प्रोवाइड्स ग्रोथ। तो लोग फ्री माइंड से ग्रो करते हैं जब ट्रस्ट बढ़ता है। टुडे मार्केट्स एग्जिस्ट फॉर डाइवर्स थिंग्स लाइक योगा एंड एस्ट्रोलॉजी थैंक्स टू एंटरप्राइजिंग सेलर्स। और आज मार्केट में ऐसी ऐसी सर्विसेज भी आ गई हैं जहां पर पीपल आर प्रोवाइडिंग एम्पल यूज ऑफ योगा एंड एस्ट्रोलॉजी, and the way they are, sharing it with people, they are being considered as enterprising sellers। ये नीड है मार्केट, बिकॉज जब हम 21st सेंचुरी में बच्चों काम करते हैं तो वी हैव टू डू अ लॉट, वी हैव टू डू अ लॉट इन लेसर टाइम, वी हैव टू प्रोड्यूस मोर इन लेसर टाइम। सो ऑब्वियसली जो योगा है वो आपके मेंटल ग्रोथ के लिए है, जो एस्ट्रोलॉजी है वो बिलीफ सेट्स के लिए है, विच इज अबाउट थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट, how it is impacting your present and how you can make your future better. So there are certain people, those who are experts in this field, and they can guide you well. So ये भी आज एक services का process बन गया है, and people are selling it, people are purchasing it, and it has come up as a very good source of generating or becoming a market driver. So producers and sellers, they are market drivers. So we are talking about micro environment of the market. Customers, market influencer. Customer is a king today, an emperor tomorrow, and more than that afterwards. आज वो राजा है, कल महाराजा है, परसों उससे कुछ और ज्यादा है। कस्टमर, customers are the most influential force in the market। इन्हीं का इन्फ्लुएंस है कंपनियां चल रही हैं, इन्हीं का इन्फ्लुएंस है नौकरियां चल रही हैं, इन्हीं का इन्फ्लुएंस है प्रोडक्शन हो रही है, इन्हीं का इन्फ्लुएंस है सर्विसेज चल रही है। कस्टमर है तो सब कुछ है, कस्टमर नहीं है तो कुछ भी नहीं। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। कस्टमर इज नेवर रॉन्ग। इनकी सेटिस्फैक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल business. Companies must produce goods that meet customers' needs, considering factors like tradition, lifestyle, income, and demographic characteristics. और कंपनी को ट्रेडिशन देखते हुए, लोगों का लाइफस्टाइल देखते हुए, इनकम को देखते हुए, और डेमोग्राफिक्स को, विच इज पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम है, उसको देखते हुए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में देना चाहिए, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, रिपीट सेल्स दे, रिपीट बिजनेस दे, and the companies and the country should survive, thrive economically. Understanding customer is key to profitability, reputation, and expansion. तो इसको हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग कस्टमर इज PRE। It's profitability, reputation, and expansion. Understanding or fostering, customers' needs as their own needs. It provides profitability, it builds up your reputation, and it helps you into expand. So customers, they are the market influencers. Seventh point, competitors, they are market challenges. Identifying competitors is essential but not always straightforward. देखिए कॉम्पिटिटर्स को पहचानना जरूरी तो है, पर इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड।
Companies like Coca-Cola and Sony know their direct competitors, but the competitive landscape is broader. हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर आपके साथ ही काम कर रहा हो, पर याद रखिएगा एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर आपके लिए भी जगह होती है काम करने के लिए, और आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए भी जगह होती है। लोग कोक भी डिमांड करते हैं, लोग पेप्सी भी डिमांड करते हैं। दे बोथ आर कॉम्पिटिटर्स, दे हैव देयर ओन प्लेस इन दिस मार्केट एनवायरमेंट। Competitors offer similar goods and services, and businesses must understand their strength, weaknesses, financial standing, market image to stay competitive. और कॉम्पिटिटर्स एक ही टाइप की सर्विसेज, एक ही टाइप का बिजनेस करते हैं, पर उन्हें पता होना चाहिए अपने स्वॉट के बारे में कि भैया हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, हम हमारे पास कितना पैसा है, कितने प्रोडक्ट्स हमारी प्रोडक्ट लाइन में है, और हमारी मार्केट इमेज क्या है, और अगर इमेज अच्छी है तो उसे और अच्छा बनाना है, कहीं पे टार्निश हुई है तो उसे बेटर करने की कोशिश करनी है। इमेज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल एंड यू हैव टू मेंटेन योर इमेज। अगर आपकी इमेज अच्छी है तो आपको उसे और पॉलिश करना है, पर अगर आपकी इमेज बुरी हो रही है और आप उसे पॉलिश नहीं कर रहे, तो एक्चुअली यू आर हेल्पिंग नॉट योर सेल्फ, यू आर हेल्पिंग योर कंटेंडर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको बहुत बड़ा बनना होता है किसी बड़ी बात को छोटा करने, आपको बहुत बड़ा बनना पड़ता है किसी बड़ी बात को छोटा करने के। यू नीड टू हैव दो स्किल्स एंड एबिलिटी। और आपको बहुत ही छोटा रहना पड़ता है एक बहुत छोटी बात को बड़ा करने के लिए, उसके लिए भी स्किल्स एंड एबिलिटीज। आर यू गेटिंग इट? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। कंज्यूमर डिमांड, बिजनेस इंपैक्ट। जो भी कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं उसका इंपैक्ट कहां पे आता है? बिजनेस के ऊपर। कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या है? कस्टमर कैन बी द बायर, बट कंज्यूमर इज द वन हु फाइनली कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, consumer demand directly affects a business profitability, reputation and expansion plans. जो कंज्यूमर डायरेक्टली डिमांड करते हैं वो पीआरई को यू नो अफेक्ट करते हैं। टू मेंटेन एंड रिटेन कस्टमर्स, कंपनीज मस्ट कंसिडर सोसाइटीज ट्रेडिशंस, कस्टम्स, वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल। तो बच्चों अगर हमने कस्टमर्स को और कंज्यूमर्स को बहुत अच्छे से सर्व करना है, तो हमें जिस सोसाइटी को सर्व करना है उसके ट्रेडिशंस पता होने चाहिए, कस्टम्स पता होने चाहिए, वहां पर क्या क्या चीजों पर विश्वास है वो पता होना चाहिए, और किस प्रकार से लोग जीते हैं वो पता होना चाहिए। मीन्स टू से वी हैव टू सर्व प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच एक्चुअली हेल्प पीपल टू मेक देयर लाइफ बेटर। हमें ना ट्रेडिशंस का पता है, क्या तौर तरीका है, क्या वहां पे कल्चर है, किस प्रकार की वैल्यूज यूज होती है, और हम प्रोडक्ट्स बनाई जा रहे हैं एक के बाद एक। तो एक्चुअली वी आर नॉट सर्विंग सोसाइटी, वी आर वर्किंग अगेंस्ट। तो अगर आप किसी के अगेंस्ट काम करोगे वो आपको सपोर्ट करेगा? इट विल नेवर, दे विल नेवर सपोर्ट यू। दैट्स व्हाई सर्टेन कंपनीज दे गो आउट ऑफ द मार्केट। मार्केट में डिमांड चल रही है एंड्रॉयड की, और आप कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज करके आप कह रहे हो नहीं आप इसी को यूज करो, तो पीपल वोंट, पीपल वोट। इनकम लेवल्स, एजुकेशन एंड डेमोग्राफिक characteristics also play a significant role in shaping consumer demand। और जितना इनकम लेवल होगा, जिस प्रकार की एजुकेशन हो, और जिस हिसाब से पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम होगी, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प करेंगे कंज्यूमर्स डिमांड को बड़ा या छोटा करने। सो कंज्यूमर डिमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इम्पैक्ट्स द बिजनेस। इट हैज टेकन अस टू पॉइंट नंबर 9, और हम बात कर रहे हैं माइक्रो एनवायरमेंट। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का मतलब है रणनीति के अंतर्गत पाई हुई बढ़त। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, ऐसी रणनीति बनाई कि आपको एडवांटेज मिल गया। स्टेइंग कॉम्पिटिटिव, हारना नहीं है किसी से। अगर आपको कॉम्पिटिटर आपसे बेटर करे तो आपने थोड़ा और बेटर करना है, वो और बेटर करे आपने थोड़ा और बेटर करना है। To stay competitive, businesses need to develop a strategic advantage over their competitors। रणनीति की तैयारी करनी पड़ेगी।
This involves understanding who the competitors are, their strengths and weaknesses, फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड ओवरऑल मार्केट इमेज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका स्वॉट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। उनका स्वॉट पता होने से आप अपने स्वॉट को उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। या तो आपका अपना स्वॉट बेहतर हो सकता है या फिर आपका अपना स्वॉट खराब हो सकता है। बेहतर है तो उसे और बेहतर करें, खराब है तो बेहतर करने की कोशिश। एडमंड बर्ग बिलीव्स दैट एन ओपोनेंट इज आवर हेल्पर, highlights the importance of learning from competitors to thrive in the market. एडमंड बर्ग कहते हैं कि जो ओपोनेंट है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो एक्चुअली हमें हेल्प कर रहा है by telling it to us what exactly they are doing, we are not doing it. So how we can do it? By increasing our strengths. How we can do it? By reducing our weaknesses. How we can do it? By, assessing the opportunities in the market. How we can do it? By reducing the threats in the market. So actually an opponent is our helper. And he highlights the importance of learning from contenders and competitors ताकि हम मार्केट में थ्राइव कर सके। Suppliers, very, very important. Suppliers are another key component in the core system of market. The company is essentially a resource. एक कंपनी की रिसोर्स होती है जहां पर conversion machine that converts materials, machines, labor and funds into useful product. कंपनी में रॉ मटेरियल आता है, सप्लायर्स भेजते हैं और वहां पर ऐसी ऐसी मशीन्स लगी होती हैं जो उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। लाइक अ स्कूल, बच्चा वहां जाता है और रेगुलरली सीख सीख के, टेस्ट दे दे के, पेपर्स दे दे के, पढ़ाई कर करके, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज करके जब वो 12th के बाद बाहर निकलता है, ही बिकम्स मोर यूज फॉर द सोसाइटी। द नेसेसरी रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सप्लायर्स। सप्लायर्स नेसेसरी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी करवाते हैं। How well the company buys depends on how well it grasps the working of various supply markets and how well it applies business principles in conducted its relationship with the suppliers. अब कंपनी सप्लायर्स के रॉ मटेरियल को कैसे अच्छे से इस्तेमाल करेगी? जब उन्हें पता है कि सप्लायर्स की वैल्यू क्या है, जब उन्हें पता है कि उनके कस्टमर्स की वैल्यू क्या है, और जब उन्हें यह भी पता है कि उनके एम्प्लॉयज की वैल्यू क्या है। ये स्टेयर केस में हर स्टेयर है ना, वो आपको वैल्यू पहचानने में हेल्प कर रहा है। Every single stair is going to help you out. तो आपने एक शब्द का हमेशा इस्तेमाल करना है बच्चों जब सप्लायर्स की बात करनी है, एक्नो, NOW, एक्नॉलेजमेंट, पहचानना, पहचानना, हर किसी की वैल्यू करनी, हर किसी की वैल्यू, छोटे से छोटे व्यक्ति की भी और बड़े से बड़े व्यक्ति की वैल्यू करनी, उसे एक्नॉलेज करना है कि भैया तू कंपनी में है, तेरी बहुत बड़ी वैल्यू है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कहीं मिट्टी का दाना देखा है? कितना सा होता है मिट्टी का दाना, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कण, और हम पंजाबी में उसे कहते हैं कख। वो कख की कोई वैल्यू नहीं होती, और वो जब कख आपकी आंख में गिरता है ना, तो आधे घंटे के लिए आपको बता देता है कि मेरी क्या वैल्यू। तो एक्नॉलेज करना है आपने सब। कोई भी आपको कभी भी समस्या क्रिएट कर सकता, स्पेशल इन बिजनेस। The necessary resources obtained from suppliers. How well the company buys. कितना अच्छे तरीके से कंपनी खरीदती है, वो तभी खरीदेगी जब उसे उसकी डिमांड पता होगी मार्केट के अंदर। On how well it grasps the working of the various supply markets, और उसे जब सप्लाई मार्केट्स के बारे में पता होगा। And how well it applies business principles in conducting its relationship with the supplier, और कितने अच्छे से रिलेशनशिप सप्लायर्स के साथ मेंटेन करना चाहती है। Lack or non-availability of suppliers can ruin the market for a product forever. और अगर suppliers available नहीं है और इनकी non-availability है तो it can ruin the market and a product forever. So suppliers are of great importance. Marketing intermediaries. Marketing intermediaries are institutions that facilitate the flow of goods and services between the company and its final market. तो बड़ी अच्छी definition है बच्चों, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। कई बार हम कहते हैं ना सर हमने डेफिनेशन नहीं पता, तो ये इसकी डेफिनेशन। मार्केट इंटरमीडियरीज आर इंस्टीट्यूशंस दैट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स, जो हेल्प करते हैं गुड्स के फ्लो में
फ्रॉम द सर्विसेज बिटवीन द कंपनी एंड इट्स फाइनल मार्केट। कंपनी से लेकर फाइनल मार्केट तक जब गुड्स पहुंच जाते हैं, वो किसकी मदद के तहत होता है? मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की मदद के तहत। दे इंक्लूड रीसेलर्स, होलसेलर्स। रीसेलर्स में कौन कौन आ गए? प्रोडक्ट को जो बार बार रीसेल करते हैं, इसमें होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, बैंक्स हैं, प्रमोटिंग एजेंसीज। दे ऑल इंक्लूड रीसेलर्स। दे ऑल वर्क टुगेदर। मार्केट से कंपनी में माल प्रोड्यूस होता है, वो होलसेलर के पास है, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, वहां से रिटेलर के पास है। सिमिलरली, यू नो, वन आफ्टर अनदर वो मार्केट में सप्लाई किया जाता है। These all institutions come into being to facilitate the work of consummating, exchanging in the market. और ये सारे institutions required हैं because इनके बिना ना suppliers की कोई वैल्यू है, ना प्रोड्यूसर्स की कोई वैल्यू है, ना प्रोडक्ट्स की कोई वैल्यू है, ना सर्विसेज की कोई वैल्यू है। मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि अगर सप्लायर्स रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, अब वो माल मार्केट तक पहुंच ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड इंटरमीडियरीज, कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपसे माल को लेकर आगे दे, फिर वहां से उठा के और आगे दे, फिर वहां से उठा के और आगे दे, और वहां तक पहुंचाए जहां तक कस्टमर की रीच है, और कस्टमर वहां से खुद आके माल को ले जाए। तो इसके लिए these all institutions come into being to facilitate the work of consummating exchange in the market। एक्सचेंज को बनाने के लिए मार्केट में इन सब इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ती है। They perform a great deal of work in bringing about transactions between the buyers and the sellers। Market cannot survive without these intermediaries। और जो ये बिचौलिए होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स को यूज करवाने के लिए, और उनकी रिपीट प्रोडक्शन करवाने के लिए, रिपीट सेल्स करवाने के लिए, और साइकिल को रिपीट घुमाने के लिए। तो जब ये होते हैं तो मार्केट को बहुत सपोर्ट मिलता है कि प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर विदाउट एनी हसल बसल, बस थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करते हैं, इट रीचेस टू द फाइनल कंज्यूमर। So, Bacho, with this, we have come to the end of today's class, where we have talked about micro environment of the market under these 11 points। Introduction में हमने मोटोरोला की बात की थी, हमने सत्यम की बात की थी, और हमने गूगल याहू की भी बात की थी। मार्केट डायनेमिक्स की बात करी हमने, मार्केट एनवायरनमेंट की बात करी, माइक्रो एनवायरनमेंट में इंटरनल फोर्सेस की बात करी, जिसमें हमने बात करी सप्लायर्स की, कस्टमर्स की, प्रोड्यूसर्स की। फिर हमने प्रोड्यूसर सेलर्स की बात सेपरेटली करी, कस्टमर्स जो मार्केट इन्फ्लुएंसर्स है उनकी बात सेपरेटली करी, कॉम्पिटिटर्स की बात सेपरेटली करी, कंज्यूमर डिमांड की बात सेपरेटली करी, फिर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पर बात की, सप्लायर्स पर बात की, और मार्केटिंग इंटरमीडियरीज पर बात करी। So with this, we have come to the end of today's class. Do not forget to take up our rigorous practice section on today's class. First point is synopsis, analyzing micro environment of the market। मैंने synopsis तैयार किया है, तो जरूर पढ़िएगा। फिर मैंने आपके लिए 10 vocabulary words तैयार किए हैं from today's content, both in English as well as Hindi। 10 short questions from today's class along with answers, even answers are small today, and objective type questions, 10 objective type questions from today's class along with answers, true and false statements along with answers, fill in the blanks along with answers। So if you have any query, any doubt, or whatsoever sort, please write it down in the message। And if any of your friends, those who wish to study entrepreneurship for 11th and 12th, please recommend them our channel, which is Mavericks India Solution ABC। We are providing subject guidance to the students and absolutely free of cost। We are not charging a single penny to provide this information to the students across the country। There's another channel of ours, which is Mavericks India Solution, which is purely based on guidelines, behavioral skills, management skills. So be the part of the channel. With this logo, you can access our channel as well। So, bacho, until we, say goodbye to you from today's class, always remember it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always be। So, see you all in the next class on macro environment. Till then, bye-bye for now. God bless you all।